حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسبر جم والویا الماست اینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو، ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسبر جم والویا الماست اینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو، ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔
सबसे बड़ी दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी दुआ अपनी औलाद के लिए बरकत की दुआ थी। जब अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत और हिकमत अता की तो अपने शुक्र अदा करते हुए अपनी नस्ल के लिए दुआ की। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरा उल-साफ़त 113, और हमने इन दोनों इब्राहिम और इसहाक़ और उनकी औलाद को बरकत दी। दुआ का असर। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर यह हुआ कि उनकी नस्ल में अल्लाह ताला ने अंबिया पैदा किए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आगे चलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल से थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआओं के पहलू। अपनी औलाद के लिए हिदायत और बरकत की दुआ। अपने वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का सिलसिला जारी रखना। अल्लाह की रहमत को नस्ल दर नस्ल जारी रहने की दुआ। सबक। वालिदैन की दुआ और बरकत औलाद की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अंबिया हमेशा अपनी नस्ल और उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत और बरकत की दुआ मांगें। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि हकीकी विरासत सिर्फ माल नहीं बल्कि दुआओं और बरकतों का तसलसल है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे। अल्लाह ताला ने आपको भी अपनी नबुव्वत और इल्म से नवाजा। आपकी जिंदगी में दुआ और बरकत का बहुत अहम किरदार था। कुरान मजीद में आपका जिक्र हमेशा नेक लोगों और अंबिया के साथ आया है। सबसे बड़ी दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी दुआ अपनी औलाद के लिए बरकत की दुआ थी। जब अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत और हिकमत अता की तो अपने शुक्र अदा करते हुए अपनी नस्ल के लिए दुआ की। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरा उल-साफ़त 113, और हमने इन दोनों इब्राहिम और इसहाक़ और उनकी औलाद को बरकत दी। दुआ का असर। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर यह हुआ कि उनकी नस्ल में अल्लाह ताला ने अंबिया पैदा किए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आगे चलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल से थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआओं के पहलू। अपनी औलाद के लिए हिदायत और बरकत की दुआ। अपने वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का सिलसिला जारी रखना। अल्लाह की रहमत को नस्ल दर नस्ल जारी रहने की दुआ। सबक। वालिदैन की दुआ और बरकत औलाद की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अंबिया हमेशा अपनी नस्ल और उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत और बरकत की दुआ मांगें। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि हकीकी विरासत सिर्फ माल नहीं बल्कि दुआओं और बरकतों का तसलसल है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रहनुमाई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नबुव्वत अता की ताकि दोनों मिलकर फ़िरौन और बनी इसराइल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। मूसा की दुआ। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के पास भेजा तो उन्होंने दुआ की, आ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर और मददगार बना दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हारून को उनके साथी और रहनुमा बनाया। फ़िरौन के दरबार में। जब हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के दरबार में गए तो हज़रत हारून उनके साथ खड़े रहे। मूसा मोजिज़ात दिखाते, हारून अपनी फसाहत और ज़बानी कुव्वत के ज़रिए लोगों को बात समझाते। उनकी गुफ्तगू इतनी वाज़ेह और मुअस्सिर थी कि सबको आसानी से समझ आ जाती। बनी इसराइल की रहनुमाई। जब हज़रत मूसा तौर पर अल्लाह से हम कलामी के लिए गए तो अपनी कौम की रहनुमाई हज़रत हारून के सुपुर्द कर गए। हज़रत हारून ने बनी इसराइल को नसीहत की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा किसी और को ना मानो। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में सामरी ने लोगों को बहका दिया और सोने का बिछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू करवा दी। हज़रत हारून ने बहुत समझाया, रोका, मगर अक्सर लोग ना माने। हज़रत हारून का किरदार। हज़रत मूसा के सबसे बड़े मददगार थे।
قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، آ اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے۔ قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی اور نہایت پاکیزہ انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کو ہدایت دینے میں گزاری، لیکن ان کی ایک خواہش تھی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی تھی، اولاد، بڑھاپا اور خواہش۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی۔ ظاہری طور پر اولاد کا ہونا ممکن نہ لگتا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دل سے دعا۔ انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے جل اٹھا ہے، پھر بھی میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ مجھے اپنی رحمت سے ایک نیک اولاد عطا فرما جو میرا وارث ہو اور علم یعقوب کی میراث سنبھالے۔ اے میرے رب، اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ سورت مریم 4:6۔ اللہ کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے کو بھیجا جو کہنے لگا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہوگا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہ رکھا گیا تھا۔ سورت مریم 7۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے اور بولے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ دعا ہمیشہ امید اور یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نیک اولاد سب سے بڑی نعمت اور بہترین وراثت ہے۔ اللہ اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، اگر وہ اپنے رب کو پکارے تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے، کیونکہ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔
हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है, फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इल्म यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ ना थे। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह जरूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़ल्मीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक। मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा,
ये अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था, ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़ल्मीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। मिस्र में कुनवे से निकलने के बाद हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बीच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है। मगर एक गवाह ने कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठे हैं और अगर पीछे से फटी है तो वो सच्चे हैं। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ की सच्चाई साबित हो गई। सबक: जवानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अपने नफस पर काबू पाना है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। ईमान और हया इंसान को सबसे बड़े फितनों से बचा लेते हैं। इल्जाम और साजिश कभी हक को छुपा नहीं सकते। हजरत यूसुफ का मिस्र में इम्तिहान ये सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो सबसे मुश्किल और खौफनाक आजमाइश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। मिस्र में कुनवे से निकलने के बाद हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बीच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है।
مگر ایک گواہ نے کہا، اگر اسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح اسف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت اسف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے پاک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے علم، حکمت اور پاکیزہ زندگی عطا کی تھی۔ ان کی پوری زندگی عبادت، سچائی اور حق کی دعوت سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی کا مقصد: حضرت علیہ السلام لوگوں کو شرک، گناہوں اور ظالمانہ رویوں سے روکتے تھے۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ اور سچی باتوں کی دعوت دیتے۔ لوگ ان کی روحانیت اور سچائی سے متاثر ہوتے، مگر کچھ ظالم حکمران ان کی نصیحتوں سے ناراض ہو جاتے۔ ظالم بادشاہ کا فتنہ۔ اس زمانے کا ایک بادشاہ خواہشات اور نفرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کو ہی حق سمجھ لیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے روکا اور کھل کر نصیحت کی، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی خواہشات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں حضرت علیہ السلام کے خلاف بغض بڑھ گیا۔ شہادت کا لمحہ۔ ایک دن اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فوجیوں نے اس معصوم اور برگزیدہ نبی کو شہید کر دیا۔ ان کا پاکیزہ خون بہہ گیا، مگر ان کی روح عزت اور رحمت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ اللہ کی رحمت۔ قرآن مجید میں حضرت علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: سلام ہے پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورت مریم 15۔ یعنی ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت اور سلامتی تھی۔ حق کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ظالم ہمیشہ حق کی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حق کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اللہ اپنے نبیوں کو دنیا سے اٹھا کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے صبر اور قربانی دیتا ہے، اس کا مقام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے پاک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے علم، حکمت اور پاکیزہ زندگی عطا کی تھی۔ ان کی پوری زندگی عبادت، سچائی اور حق کی دعوت سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی کا مقصد: حضرت علیہ السلام لوگوں کو شرک، گناہوں اور ظالمانہ رویوں سے روکتے تھے۔ وہ ہمیشہ پاکیزہ اور سچی باتوں کی دعوت دیتے۔ لوگ ان کی روحانیت اور سچائی سے متاثر ہوتے، مگر کچھ ظالم حکمران ان کی نصیحتوں سے ناراض ہو جاتے۔ ظالم بادشاہ کا فتنہ۔ اس زمانے کا ایک بادشاہ خواہشات اور نفرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کو ہی حق سمجھ لیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے روکا اور کھل کر نصیحت کی، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی خواہشات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں حضرت علیہ السلام کے خلاف بغض بڑھ گیا۔ شہادت کا لمحہ۔ ایک دن اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فوجیوں نے اس معصوم اور برگزیدہ نبی کو شہید کر دیا۔ ان کا پاکیزہ خون بہہ گیا، مگر ان کی روح عزت اور رحمت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ اللہ کی رحمت۔ قرآن مجید میں حضرت علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: سلام ہے پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورت مریم 15۔ یعنی ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت اور سلامتی تھی۔ حق کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ظالم ہمیشہ حق کی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حق کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اللہ اپنے نبیوں کو دنیا سے اٹھا کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔
हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत हमें ये सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जन्नत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जन्नत पर काबू। जन्नत एक निहायत ताकतवर मखलूक है। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती और फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जन्नत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जन्नत के काम। हज़रत सुलेमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत कले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जन्नत की अपनी ताकत से। जन्नत का इम्तिहान। जन्नत हज़रत सुलेमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सुलेमान की ज़ाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी ज़ाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जन्नत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हज़रत सुलेमान और जन्नत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज्जत, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जन्नत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जन्नत पर काबू। जन्नत एक निहायत ताकतवर मखलूक है। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती और फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जन्नत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जन्नत के काम। हज़रत सुलेमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत कले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जन्नत की अपनी ताकत से। जन्नत का इम्तिहान। जन्नत हज़रत सुलेमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सुलेमान की ज़ाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी ज़ाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जन्नत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हज़रत सुलेमान और जन्नत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज्जत, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जन्नत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जन्नत पर काबू।
जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफर तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हजरत सलमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती और फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हजरत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत किले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जनवत की अपनी ताकत से। जनवत का इम्तिहान। जनवत हजरत सलमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सलमान की जाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी जाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हजरत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज्जत, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनवत। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जनवत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जनवत पर काबू। जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफर तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हजरत सलमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती और फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हजरत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत किले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जनवत की अपनी ताकत से। जनवत का इम्तिहान। जनवत हजरत सलमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सलमान की जाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी जाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हजरत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज्जत, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आदाद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ने आपको ऐसी बादशाहत दी थी कि इंसान, जिन्नात, हवाएं और परिंदे सब आपके हुक्म के ताबे थे। आपकी फौज में परिंदे भी शामिल थे और अब बाकायदगी से अपनी फौज का जायजा लिया करते थे। आदाद की गैर हाजिरी। एक दिन हजरत सलमान अपनी फौज का मुआयना कर रहे थे। आपने फरमाया, मुझे आदाद एक छोटा सा परिंदा नजर नहीं आता। अगर वो बगैर किसी माकूल वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं जरूर इसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद आदाद उड़ता हुआ वापस आया। आदाद की खबर। आदाद ने अर्ज किया, मैं ऐसी खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं थी। मैं सबा, यमन के इलाके से आया हूं।
وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا، اعداد میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ اعداد پر واز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق: کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اعداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور اب باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اعداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اعداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ اعداد کی خبر۔ اعداد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں سبا، یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا، اعداد میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ اعداد پر واز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق: کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عادل حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر آپ کی خوبصورت اور روپرور آواز ایک عظیم معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر زبور کے ساتھ آتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ جب حضرت دیاد اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھتے تو ان کی آواز اتنی پرنور اور اثر انگیز ہوتی کہ پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز میں شامل ہو کر ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ سبا 10۔ زبور کی تلاوت۔ حضرت دیاد پر جو زبور نازل ہوئی وہ اللہ کی حمد، نصیحتوں اور رہنمائی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے، دل ان کی آواز سے پگھل جاتے، ہر کوئی اللہ کی یاد میں رونے لگتا۔ آواز کا اثر۔
حضرت دیاد کی آواز صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتی تھی۔ گنہگار لوگ اپنے گناہ چھوڑ دیتے، دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جاتی۔ سبق: اللہ کی نعمتیں جیسے آواز، علم، طاقت ہمیشہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے کرنا چاہیے تاکہ اثر ہو۔ ایک مومن کی آواز اور بیان اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے الفاظ میں ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عادل حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر آپ کی خوبصورت اور روپرور آواز ایک عظیم معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر زبور کے ساتھ آتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ جب حضرت دیاد اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھتے تو ان کی آواز اتنی پرنور اور اثر انگیز ہوتی کہ پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز میں شامل ہو کر ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ سبا 10۔ زبور کی تلاوت۔ حضرت دیاد پر جو زبور نازل ہوئی وہ اللہ کی حمد، نصیحتوں اور رہنمائی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے، دل ان کی آواز سے پگھل جاتے، ہر کوئی اللہ کی یاد میں رونے لگتا۔ آواز کا اثر۔ حضرت دیاد کی آواز صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتی تھی۔ گنہگار لوگ اپنے گناہ چھوڑ دیتے، دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جاتی۔ سبق: اللہ کی نعمتیں جیسے آواز، علم، طاقت ہمیشہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے کرنا چاہیے تاکہ اثر ہو۔ ایک مومن کی آواز اور بیان اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے الفاظ میں ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت دیاد اور جالوت کا مقابلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عظیم واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جب انہوں نے اللہ کے بھروسے پر ایک جابر و ظالم حکمران جالوت کو شکست دی۔ جالوت کا ظلم۔ جالوت ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کا لشکر بہت بڑا اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت طالوت کے پاس تھی۔ اس نے اپنی فوج جمع کی اور جالوت کے خلاف نکل کھڑا ہوا۔ حضرت دیاد کا شامل ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت جوان تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی غالیل چلانا جانتے تھے۔ ان کی اصل طاقت ان کا ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت اپنے بڑے لشکر کے ساتھ آگے آیا اور غرور سے للکار کر بولا، کیا تم میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ دیاد کا بھروسہ۔ حضرت دیاد نے پر یقین لہجے میں کہا، میں اللہ کے بھروسے پر تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک نوجوان صرف غلیل کے ساتھ کس طرح ایک عظیم بادشاہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن حضرت دیاد کو یقین تھا کہ فتح صرف اللہ دیتا ہے۔ فیصلہ کن لمحہ۔ حضرت دیاد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لیا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ جالوت کے مرنے کے بعد اس کا لشکر ٹوٹ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کا انعام۔ اس فتح کے بعد حضرت دیاد کی عزت اور مقام بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، علم اور بعد میں بادشاہت عطا کی۔
उनकी जिंदगी इस बात की निशानी बन गई कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर यकीन में है। सबक: असल कुव्वत अल्लाह पर भरोसा है, न कि जाहिर के हथियार। एक जवान का ईमान बड़े से बड़े दुश्मन को गिरा सकता है। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म से वो मिट जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़या हमेशा के लिए ये सबक देता है कि अल्लाह की मदद के साथ छोटी सी कुव्वत भी बड़े से बड़ा दुश्मन गिरा सकती है। हजरत दियाद और जालूत का मुकाबला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक अजीम वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है, जब उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर एक जाबिर और जालिम हुक्मरान जालूत को शिकस्त दी। जालूत का जुल्म। जालूत एक ताकतवर बादशाह था। इसका लश्कर बहुत बड़ा और जदीद हथियारों से लैस था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म ढाता था। इस वक्त बनी इसराइल की क़ियादत तालूत के पास थी। इसने अपनी फौज जमा की और जालूत के खिलाफ निकल खड़ा हुआ। हजरत दियाद का शामिल होना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त जवान थे। वो एक छोटी सी गालेल चिल्लाना जानते थे। उनकी असल ताकत उनका ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा था। जब दोनों फौजें आमने सामने हुईं तो जालूत अपने बड़े लश्कर के साथ आगे आया और गुरूर से ललकार कर बोला, क्या तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? दियाद का भरोसा। हजरत दियाद ने पुरयकीन लहजे में कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर तुझसे मुकाबला करूंगा। लोग हैरान रह गए। एक नौजवान सिर्फ गुलेल के साथ किस तरह एक अजीम बादशाह और उसके लश्कर का मुकाबला करेगा। लेकिन हजरत दियाद को यकीन था कि फतह सिर्फ अल्लाह देता है। फैसला कुन लम्हा। हजरत दियाद आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा, अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से फेंका। वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा। जालूत जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। जालूत के मरने के बाद इसका लश्कर टूट गया और भाग खड़ा हुआ। अल्लाह का इनाम। इस फतह के बाद हजरत दियाद की इज्जत और मकाम बढ़ गया। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत, इल्म और बाद में बादशाहत अता की। उनकी जिंदगी इस बात की निशानी बन गई कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर यकीन में है। सबक: असल कुव्वत अल्लाह पर भरोसा है, न कि जाहिर के हथियार। एक जवान का ईमान बड़े से बड़े दुश्मन को गिरा सकता है। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म से वो मिट जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़या हमेशा के लिए ये सबक देता है कि अल्लाह की मदद के साथ छोटी सी कुव्वत भी बड़े से बड़ा दुश्मन गिरा सकती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत ही साबिर नबी थे। उन पर एक लंबी आजमाइश आई। उनकी सेहत छन गई, दौलत छन गई, औलाद एक एक करके वफात पा गई, लेकिन उनका ईमान और सब्र कभी कमजोर ना हुआ। मुसीबत का लम्हा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। लोग उनसे दूर भाग गए, मगर उनकी वफादार बीवी हमेशा उनके साथ रही। वो खिदमत करती रहें और दुआ करती रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में यही कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है। दुआ का असर। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंची तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-अंबिया 83। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। जब उन्होंने पांव मारा तो जमीन से शिफा बख्श पानी निकला। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो गईं। फिर जब इस पानी को पिया तो अंदर से भी सेहत लूट आई। अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी, बल्कि उनकी दौलत को दुगना करके वापस दिया। उनकी औलाद दोबारा अता फरमाई। उनकी इज्जत और मर्तबा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। हर मुसीबत का असल इलाज अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह देता है तो पहले से बढ़कर और बेहतरीन अता करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा ये सबक देती है कि बीमारी और आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए सेहत, रहमत और बरकत के दरवाजे खिल जाते हैं।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत ही साबिर नबी थे। उन पर एक लंबी आजमाइश आई। उनकी सेहत छन गई, दौलत छन गई, औलाद एक एक करके वफात पा गई, लेकिन उनका ईमान और सब्र कभी कमज़ोर ना हुआ। मुसीबत का लम्हा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। लोग उनसे दूर भाग गए, मगर उनकी वफादार बीवी हमेशा उनके साथ रही। वो खिदमत करती रहें और दुआ करती रही। अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में यही कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है। दुआ का असर। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंची तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-अंबिया 83। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। जब उन्होंने पांव मारा तो जमीन से शिफा बख्श पानी निकला। उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो गईं। फिर जब इस पानी को पिया तो अंदर से भी सेहत लूट आई। अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी, बल्कि उनकी दौलत को दुगना करके वापस दिया। उनकी औलाद दोबारा अता फरमाई। उनकी इज्जत और मर्तबा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। हर मुसीबत का असल इलाज अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जब अल्लाह देता है तो पहले से बढ़कर और बेहतरीन अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा ये सबक देती है कि बीमारी और आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे तो इसके लिए सेहत, रहमत और बरकत के दरवाजे खिल जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज्जत और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो। जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज्जत, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज्जत और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया,
अपने पांव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज्जत, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज्जत और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अय्यूब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अय्यूब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज्जत, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज्जत और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अय्यूब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अय्यूब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज्जत, रहमत और कामयाबी से नवाजता है।